It is said that success isn't about greatness, it is about consistency. और इसी प्रकार से एकेडमिक सक्सेस की लिविंग लेजेंड रैना दोषी आज हमारे साथ है, जिन्होंने 10th में अपने स्कूल में टॉप किया था, 12th में एनएम कॉलेज में टॉप किया था और मुंबई में सेकंड रैंक थी, सीए फाउंडेशन में 331 and CA Inter में All India rank 35. Let's welcome on today's Edno Talk, Rena Doshi. Rena, how do you feel? How are you? The introduction was so overwhelming and I feel great. I'm good. How are you, sir? I'm doing absolutely good. How excited are you about this Edno Talk today? So this is my first podcast. I was pretty excited for it since the beginning. So when I saw Ednovate ka talk last year, since then I've been waiting के rank आएगा ना तभी I want to do this podcast. So that means वो पहले से Ednovate को follow कर रही है, बॉस मेरे को ये podcast लेना है सर के साथ. तो क्या? Okay guys, let's shoot the first question. Rena, I just want to know that what is your key to success? How have you been such a Virat Kohli of academic? Can you please tell me, मतलब हर मैच में अच्छा खेलना ये आपने कैसे मैनेज किया? How do you do it? I think what made a difference in my life is that I was pretty consistent. So throughout school, मतलब 8th के पहले तक तो ठीक है, सब लोग बच्चे होते हैं, but then right after 8th, I think I started taking studies seriously कि मतलब रोज एटलीस्ट 15 मिनट्स दैट्स इट. मैं उससे ज़्यादा नहीं पढ़ती थी बिकॉज पीपल हैव दैट इम्प्रेशन कि अरे ये हर जगह टॉप करती है, ये तो नर्ड है, फुल डे पढ़ती होगी. नो नो नो, आई प्ले अ लॉट. एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं खेलती रहती हूँ. बट वॉट हेल्प्स मी इज़ के जब भी पढ़ाया गया है राइट ऑन दैट डे I start revising the same thing. So that registers it in my head. And फिर classes में तो we have repeated homework, we have tests. तो वो सब से it just kind of gets registered in my head because it's done like 2-3 times. फिर exam में तो naturally याद आ जाता है. Wow. In fact, I would like to ask you this question. And every student, आज जो भी student और parents देख रहे हैं, जो भी student CA pursue कर रहे हैं या कोई भी academic course pursue कर रहे हैं, उन सबको मालूम है rank का मीनिंग क्या होता है. And when it is all India rank 35, I want to ask you, Rena, one very simple question. How much did this rank mean to you before you started your CA Inter journey? Because CA Foundation में ऐसा होता था कि रैंक नहीं मिलती थी. So पहली बार अगर आपको CA स्टडीज में रैंक चाहिए तो वो इंटर CA में आने वाली थी. तो कितना ये रैंक का इम्पोर्टेंस था आपके मन में when you wanted to start with CA? And then how did you work towards this rank? So what I think is this rank was pretty meaningful for me because मुझे पहले से रैंक आया है. तो everyone whom I knew who were already CAs or who are pursuing CA or even other stream के people, everyone knows a CA. All in all. So everyone was like कि बॉस अभी तक तो तुझे स्कूल में आया है 100 लोग में से आया, कॉलेज में से आया 1000 में से आया, अभी तो इंडिया में देखी तो लाखों में से लेने वाली है. तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो एवरीवन वाज लाइक काइंड ऑफ स्कैरिंग मी कि ठीक है अभी तक आ गया, अभी अगर तूने छोड़ दिया ना या ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई ना, सीए में रैंक मिलना इजी नहीं है बिकॉज एवरीवन वाज लाइक अभी तक तो रैंकर्स थे, सीए इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट फेल. तो दैट वाज समथिंग दैट ऑल्सो स्कैर्ड मी. बट एट द सेम टाइम आई वाज लाइक नहीं, मुझे जो लोग ये सब बोल रहे हैं ना, आई वांट टू प्रूव इट टू देम कि बॉस इट इज नॉट इम्पॉसिबल. हो तो सकता ही है. एंड आई वाज ऑल्सो प्रिटी श्योर कि I want a rank. मतलब I had told this to you on the first day. I told this to every professor. So I think in the introduction lectures that we had, yes, almost every professor asked, how many of you expect a rank? I was the first hand who shot up. Okay, boss, मेरे को चाहिए. Second bench, I think second bench was your fixed place. I still remember the very first lecture I took. Yeah, so I always used to sit there with my group. तो जैसे ही कोई भी प्रोफेसर पूछता था, I would like, sir, मैं, तो everyone would be like, फिर सर वही बोलते थे, अरे सोचो ऊपर तो सोचो, सब लोग ज्यादा सोचोगे तो तुम लोग कहीं तो पहुंचोगे, रैंक का एम करो तो पास हो जाओगे. बट आई वुड ऑलवेज बी लाइक नहीं, रैंक का एम करके रैंक लाना है. Very nice. बट या सो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड एट द सेम टाइम आई वाज डिटरमाइंड कि कुछ भी हो जाए रैंक तो चाहिए बॉस. नहीं, सो इट इज एग्जैक्टली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्ट बहुत सारे जन करते हैं, पॉजिटिव सारे जन सोचते हैं, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव, इट इज अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव and doing everything it takes to reach there. So Rena, I think a lot of students are waiting and listening to your success story today. So let's break this success story. Okay. If I want to ask you the first question, why you wanted to become a chartered accountant and when this thought came into your head कि यार मुझे CA बनना है.
Being honest, I was definitely a person who was going to go into science. मेरा 10th के बीच तक I was like बस science fixed है, science में जाना है, research science में घुसना है. फिर my mom is like बेटा money aspect कुछ होता है. I'm like yeah okay you're right. And I definitely didn't want to go out of India. That was clear. तो आई वॉज लाइक ठीक है फिर अगर इंडिया में इसका स्कोप नहीं है तो कॉमर्स कर लेते हैं. एंड कॉमर्स में आई हैव सीन माई मासी, शी इज़ अ रैंकर इन CA herself. My masa also, he's been a ranker in CA, he's done his CFA, so they are very inspirational people. तो they told me clearly कॉमर्स करना है तो CA कर ले, बिकॉज CA से बेटर कोई डिग्री नहीं है कॉमर्स में. सो आई वॉज लाइक ओके फाइन. आई वॉज वेरी मतलब अनश्योर लाइक वाइल गेटिंग इन टू इट कि ये क्या है, ये अकाउंट्स है, ये आई डोंट नो एनी थिंग. सो दे आर लाइक रिलैक्स, यू लाइक एवरी थिंग बिकॉज यू लाइक नंबर्स. आई वॉज ऑलवेज गुड एट मैथ. तो आई वॉज लाइक ठीक है लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट, क्या होगा वो उससे बस. तो आई एंटर्ड कॉमर्स. 11th-12th में आई वॉज मतलब श्योर कि अगर कॉमर्स करी हो तो आई वांट टू गो इनटू NM. regretful decision but ठीक है. No, 11th-12th was fun in NM. 11th was तो online तो we barely got any experience. 12th was hectic but it was a good experience because I know so many people who are rankers and वो लोग सब NM से. Correct. And plus in our batch also there are so many people who were in NM with me and they're all rankers. तो networking अच्छा हो गया and it was a good place to learn so many things. तो तभी फिर 11th के मिड में आई वॉज इंक्लाइनिंग के ठीक है चलो अभी CA करना है तो थोड़ा अभी प्रेप करना शुरू कर देते हैं. तो आई वॉज विथ विशाल सर एंड राजीव सर इन 11th एज वेल. तो दे ओनली गाइडेड मी के मतलब वी ऑफर फाउंडेशन का ट्रेनिंग एज वेल. तो आई वॉज वेरी क्लियर कि विशाल सर ने फाउंडेशन तो मतलब 11th का बेस इतना क्लियर रखा है तो आई वॉज वेरी क्लियर कि नो आई कंटिन्यू विद देम. तो दैट इज व्हेन दे परसुएडेड मी कि मतलब if you put your mind to it, it is possible. मतलब जितना सब लोग डराते हैं ना, if you have the dedication तो उतना डराना नहीं है. So I was like yes, that I'm sure I have the dedication. So I entered CA. So that's where it started. Wow, and she entered with a bang. मतलब घुसते ही AIR 35 और एक डर रहता है ना, मतलब हमेशा एक डर रहता है कि यार CA is very difficult and I see that you have this set of group with whom she has always been there. And I would like to say despite the CA inter result being 18%, Rena का पूरा group, I think your group consisted of how many people? Means that core group was 8 to 9 people. Those entire group got 100% passing percentage. मतलब ये ग्रुप स्टडीज होती थी कि ये क्या राज रहा है कि पूरा ग्रुप एक साथ में दोनों ग्रुप फर्स्ट डे में पास हुए. So हम लोग फ्रेंड्स ही बने फाउंडेशन में राजीव सर विशाल सर के क्लास में. उसके पहले वी जस्ट न्यू ईच अदर बाय आवर फेसेस. फिर उसके बाद फाउंडेशन से इट यूज्ड टू बी अ ग्रुप ऑफ 4 of us पहले एंड 3 of them were together. फिर वी बिकेम क्लोजर फाउंडेशन के जैसे जैसे क्लासेस हुए एक दूसरे की मस्ती करते करते. फाउंडेशन तो निकल गया, इट वॉज फाइन. आवर सिलेबस वॉज रिलेटिवली प्रेटी ईजियर. बट फिर जब इंटर आया तब वी स्टार्टेड सिटिंग टुगेदर. इंटर में वी गॉट टू नो के बॉस मतलब ये गेम चेंजर है, अलग हो रहा है. तो सिंस माई ग्रुप वॉज प्रिटी डिटरमाइंड, हम लोग सब में वो डेडिकेशन था कि मतलब अभी आज सब लोग घूमने जा रहे हैं बाकी का जो ग्रुप है. तो वी ऑल वर क्लियर कि नहीं एग्जाम है, क्लासेस का टेस्ट है, पहले वो पढ़ लेते हैं, अगर हुआ तो जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे. तो आई थिंक वी ऑल मोटिवेटेड ईच अदर इन अ वे कि यार ये भी नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जा रही हूँ, पढ़ाई पहले खत्म करता ना. बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैड अ फन. वी रिक्वेस्टेड यू धवल सर पर्सनली कि नवरात्रि में हम लोग को जल्दी छोड़ो, आप जल्दी क्लासेस दो, 11 बजे बुलाओ बट लीव अस अर्ली, एंड यू कंप्लाइड विद अस. सो माय आइडिया वाज वेरी सिंपल कि अगर आप मेरा बेसिक काम करके दे रहे हो तो व्हाई नॉट. मतलब not only that, I remember we had fun together at Falguni Pathak. Exactly, Ednoras was super fun, and plus sir left classes at 7-7:30 every day. तो हम लोग क्लास में घाघरा चोली कुर्ती सब लोग पहन के आते थे, सीधा उधर से गरबा खेलने के लिए भाग जाते थे. एंड वी प्लेड ऑल 9 days. बट एट द सेम टाइम वी न्यू के पढ़ाई कांट बी अ बैलेंसिंग फिगर, दिस हैज टू बी अ बैलेंसिंग फिगर. तो सुबह को रोज उठ के वो 9 days वी वर सो टायर्ड बट वी वर श्योर कि नहीं. और अमित सर ने अच्छे होमवर्क भी देके रखे थे. ओह गॉड, कितना अमित सर को इतना रिक्वेस्ट किया था कि सर होमवर्क नवरात्रि में मत दो. ही इज लाइक कि बेटा गरबा जितना खेलना है खेलो, पूरी रात जागो, बट होमवर्क करना पड़ेगा. एंड दैट वाज समथिंग दैट डेफिनेटली हेल्प्ड अस टू कीप अस इन चेक, नहीं तो हम बह जाते. सो दैट इज व्हाट एट Ednovate we always believe, and we were on our words that study hard, party harder. So this
shows, this shows कि खाली सिर्फ आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आप पूरी सीए जर्नी अच्छे से कर सकते हो और बहुत फर्क पड़ जाता है when you get those kind of teachers. What role did the Ednovate teachers play in your entire CA inter journey and how it helped you to get this rank? So most of the subjects are new in inter, right? तो I had no idea कि मतलब how I'm going to tackle this subject, मतलब ये क्या है कुछ नहीं मालूम. But most of the professors first lecture तो they actually took to introduce us to the subject. जैसे कि धवल सर कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग का डेफिनेशन इट इज डेफिनेटली नॉट स्क्रिप्टेड, पर कॉस्टिंग का मतलब एग्जैक्टली इवन इफ यू सी डेमो लेक्चर्स कॉस्टिंग क्या है पहले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द चैप्टर्स. दैट हैपेंड विद अस इवन इन लॉ, इवन इन टैक्स तो माय गॉड सर ने कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था, वाई टैक्स, व्हाट टैक्स, कितने लॉज है. तो दैट डेफिनेटली फॉर्म्ड अ वेरी गुड बेस फॉर मी. उससे बिल्डअप होते गया, लाइक द टावर वाज बिल्डिंग दिस वे. तो एट एवरी स्टेप वी हैड मतलब ऑल द प्रोफेसर्स आर एंश्योर्ड कि हम लोग का बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि नेक्स्ट स्टेप ले तो पहले वाला स्टेप भूल ना जाए. तो दैट वाज समथिंग दैट डेफिनेटली हेल्प मी. अदर देन दैट एज आई मेंशन डाउट सॉल्विंग वाज सुपर हेल्पफुल. मुझे इतने स्टूपिड डाउट्स भी आते हैं कभी कभी कि इवन आई एम शॉक के हाउ एम आई इवन थिंकिंग दिस वे, बट वो सभी क्लियर हुए थे. प्लस not just studying, but other than that kabhi bhi if any student was facing any difficulty in coping with studies, because it's like CA वाले लोग एक तरफ है, बाकी की दुनिया एक तरफ है. It's like the world is moving on and CA में you feel you're stuck because you have barely any social life. सब लोग बाहर घूमते हैं, सब लोग मस्ती करते हैं. You are sitting in class 8 hours a day including Sundays. तो it gets very mentally exhaustive. But all the professors made sure कि बच्चों की ऐसी हालत ना हो. बीच बीच में से मस्ती टाइम भी बैलेंस कर लेते थे. प्लस इफ समवन नीडेड हेल्प कि सर नहीं हो रहा है, मतलब बहुत प्रेशर आ रहा है, तो दे गाइडेड अस पर्सनली कि मतलब दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, आफ्टर योर CA दिस विल बी सो मच बेटर. एंड मतलब दे बेसिकली जस्ट हेल्प्ड अस टू रिस्टोर आवर इक्विलिब्रियम. So that definitely helped throughout the journey. It was so needed. And how many tests did you write, means to make sure? I wrote all the tests. I genuinely wrote all the tests, and that is definitely one thing that helped me because repetition. So if we can take a quick check. All homeworks always? Done. All tests always? Written. All doubts always? Solved. तो क्यों रैंक नहीं आएगी यार? मैं तो इतना बोलता हूँ बच्चों को एकदम सिंपल रखते हैं कि गाइस इफ यू रियली वांट टू क्लियर इंटर CA, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट लेट अस गो वेरी लाउड टू ऑल एकेडमिक डिग्रीज टुडे. ओके, अगर आप ठान लेते हो कि आप लोगों को पास करना है, आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि पास होने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, दैट इफ यू डू एंड इफ यू हैव अ राइट सेट ऑफ मेंटर, राइट सेट ऑफ टीम, देन success is definitely yours. Rena, today a lot of people wants to know that कि normally classes का जो time रहता है, at that point of time तो everybody is there with teacher, क्योंकि आप 8 से 9 घंटा क्लास में बिताते हो, टीचर्स टच में भी रहते हैं, बट मेजर गेम चेंजर होता है वो स्टडी लीव. So go on to your study leave and talk everything about study leave, your studies, your pressures. Maybe everybody has another story attached other than studies also. And what role did Ednovate play there? So for the study leave period, as sir said, February के first week में all lectures were over. The syllabus was completely done, not rushed at all. And फिर it's like you are let out, मतलब you fend for yourself, that's it. तो सब लोग रोज मिलते थे, 8 घंटा 9 घंटा साथ में हो जाता था. उसके बाद first week everyone had difficulty coping कि मतलब पढ़ना शुरू करना है बट किधर से करे, क्या करे, कोई आइडिया ही नहीं है. एंड प्लस वो फोकस नहीं बैठता बिकॉज यू स्टडीड 8-9 आवर्स एक्टिवली, आई अग्री, बट इट वॉज ऑल लिसनिंग एंड प्रोसेसिंग इन योर हेड. अभी यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द बुक्स, यू आर स्टेयरिंग एट द बुक्स, यू आर जोनिंग आउट. इतनी घंटा बैठने को भी नहीं हो रहा बिकॉज कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है कि मतलब दोस्त बोल रहा है कि अरे बैठ जा, लेक्चर है, या कोई प्रोफेसर डांट के बैठा रहा है, कुछ नहीं. इट्स जस्ट ठीक है, मत बैठो मत पढ़ो. बट वो दिन चला गया. एंड इन द स्टडी लीव पीरियड एवरीवन काउंट्स डेज, एवरीवन नोज दैट इन CA. तो दैट इज वेयर आई थिंक एडनोवेट हेल्प्ड अस के पहले किधर से स्टार्ट करो. दे गेव अस अ क्लियर रोड मैप, जिसको फॉलो करना है वो कर सकते हैं. इफ यू हैव योर ओन टाइम टेबल देन डेफिनेटली फॉलो इट, बट इफ यू डोंट, दे हेल्प्ड अस टू मतलब
स्केड्यूल के मतलब ठीक है इतना टाइम अलॉट करो ये सब्जेक्ट को, इतना टाइम अलॉट करो ये सब्जेक्ट को. सो आई थिंक दैट I गिव अस remember अ we had a पाथ. weekly 2 or 3 tests, we Yeah. made sure. तो वी हैड अ क्लियर पाथ के मतलब कैसे पढ़ना है, व्हाट इज द रूट. फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन एंड आई थिंक यू टुक डेली चेकअप. सो यू अमित सर आप लोग का कॉल आता रहता था टू मेनी पीपल के मतलब मैसेज जाता था कुछ नहीं तो कि मतलब कैसा चालू है, पढ़ाई चालू है, ढंग से कर रहे हो. तो आई थिंक दैट ऑल्सो वॉज लाइक एन अकाउंटेबिलिटी फैक्टर फॉर अस के नहीं नहीं सर पूछने वाले, झूठ नहीं बोलना उनको. तो दैट वाज And I also समवेयर. remember we met, I think, twice, thrice in that particular ડેફિનેટલી. period. તો ઇટ હેલ્પ મી ટુ ગેટ માય માઇન્ડ ઓફ ઇટ. તો તમે જોયું હતું કે હું કેટલી સ્ટ્રેસ્ડ હતી. આઈ વોઝ સો સ્ટ્રેસ્ડ. સો યુ વર લાઈક relax, it's just an exam at the end of the day. You're going good, you're going strong, and just don't lose your confidence. Because I'm very sure, मतलब मैं उन सारे बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, मैं फेल हो गई तो क्या, एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग देयर. सो वन थिंग विच आई एम श्योर, क्योंकि आप मुझे पता था कि ये आप और पूरा गैंग, इनफैक्ट सो मेनी स्टूडेंट्स वर डूइंग एवरीथिंग इट टेक्स. The only thing which could have spoiled the game was this mental stress. Exactly. And that exactly we as a teacher always thought कि कुछ भी हो जाएगा, हम बच्चों को ये स्ट्रेस के कारण हारने नहीं देंगे. Right. And as most of the professors have already said कि CA इंटेलिजेंस का गेम है ही नहीं, मेंटल टेस्ट है खाली. तो इफ यू कैन मेंटेन योर स्टेट ऑफ माइंड थ्रू आउट दैट ईयर ड्यूरिंग दोज 3 hours ऑफ द पेपर, तो कुछ नहीं है ये. मतलब इट इज़ वेरी इजी टू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इफ यू हैव योर हेड इन द गेम. That's it. And I think that is where most of us face the difficulty. So you all helped us to, stay confident and believe in ourselves So mainly. we can summarize this in a very short. In those, let's break this. First, what is your suggestion to them to do in the first 7 months immediately after CA Foundation exam? So immediately as soon as you start your classes, I would advise कि at least spend 15 minutes a day apart from the homework given to you. वो 15 minutes में just glance through whatever is done. I'm not even asking you to study, revise, memorize, कुछ नहीं. खाली ऊपर से देख लो. That would definitely help you because I think since I did that, I was so confident with like 70% of the syllabus by the time I started my study leave. Because मैंने वो बहुत बार देख लिया. And see, classes will play their role. They will give you homework. They will give you tests to write. If you fulfill that role, तो तुम्हारा प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा और वो कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा. बट दैट 15 minutes counts. Like I know it because study leave period में I was facing a burnout. You know that. I was so stressed and I was like, I cannot look at this book again. Like I am so done. But I had that confidence because I knew my content and that was because of the repetition. So that 15 minutes advice I'll definitely give you and do all the homework because it is at the end of the day, जब भी आएगा तभी it's so stressful. But when you do it, after you do it, the confidence that you'll get, वो कोई भी पढ़ाएगा उससे नहीं आएगा. So in fact I see a lot of people feel यार सर एडनोवेट में तो होमवर्क मिलता है, हमें तो कहीं पे भी नहीं मिलता है. इनफैक्ट इन लोगों को आदत भी नहीं होती. अब उन लोगों को स्कूल कॉलेज के बाद जैसे ही कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है उनको लगता है होमवर्क क्या है. बट एट एडनोवेट वी डू एंश्योर एंड आई एम सो सॉरी वी विल कंटिन्यू एंश्योरिंग. बट हाउ It's मच necessary. दैट इज द हेल्प, कितना हेल्प किया उन होमवर्क्स ने. Again, by repetition was the key for me. नहीं तो I would not have confidence as well. मेरे पेपर के 2 दिन पहले I was chilling, मतलब chilling as in of course I was mentally stressed, but पढ़ाई नहीं हो रही थी. I was playing on my phone, I was watching YouTube because मेरे घर पे भी चिल्ला रहे थे कि तू क्या कर रही है, CA की एग्जाम है, तू अभी क्यों नहीं पढ़ रही है. And I was just so I was confident because I knew my stuff, but at the same time I was also panicking. Correct. But अगर मैंने homework and repetition नहीं किया होता, I would not have that confidence. Correct. And last day burnout का फेज होता है. देयर आर पीपल हु फॉल सिक राइट बिफोर द एग्जाम. तो वो लोग भी क्लियर कर लेते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव स्टडीड इन एडवांस. तो लास्ट डे के लिए इफ यू कीप बैंकिंग ऑन स्टफ इट वोंट हेल्प. तो होमवर्क डेफिनेटली हेल्प मी इन दैट के रेपिटेशन इंश्योर हो गया कि हाँ एक बार क्लास में पढ़ाया, एक बार मैंने खुद से पढ़ा, एक बार मैंने होमवर्क कर लिया, 3 बार ऐसे ही हो गया साइड बाय साइड. So then let's move on to the study leave. Give some suggestion for study leave. वो 3 महीने 4 महीने how it should be ideally. Ideally, see, everyone has their own pace of studying. Everyone takes their own amount of time to study, but you need to put in the hours. मतलब you have an entire day to yourself. You have no other plans. You have no other commitments except studying. That is the first thing that should be clear in your head. क्योंकि first attempt में करना है
those 3 months are crucial. I'm not gonna lie to you guys. It is very crucial. But you will face many challenges in them. बहुत, as sir said, personal life में बहुत लोगों के बहुत सारे अलग अलग problems होते हैं which no one would like to share on a camera or just in general. किसी को नहीं पता होता है. But at the end of the day, I think कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारी जो भी challenges है, at the end of the day, for ICAI or any other company that you wish to work for them it's an excuse. Because सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. Your problem could be 10 times more intense than anyone else. But at the end of the day, it will be an excuse. This is one line that has stayed with me and made me want to prove कि excuses सबके पास है. But the winner is a person जो वो सब रीजंस के बावजूद भी करके दिखाता है एंड प्रूव करता है कि बॉस आई कैन बीट दिस एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स इन लाइफ. तो स्टडी लीव के टाइम पे इवन आई हैड माई ओन सेट ऑफ चैलेंजेस बट आई एंश्योर्ड दैट आई पुट इन दी आवर्स टू स्टडी. तो मैं एटलीस्ट सो माई स्केड्यूल वॉज वेरी वियर्ड. सर नोज इट, एवरी वन नोज इट, एवरी वन वॉज लाइक ये लड़की पागल हो गई है. आई यूज टू स्टार्ट स्टडिंग एट 3 PM in the afternoon. I used to study till 9:30. I used to go to a library. फिर मैं घर आती थी 3 घंटा. I used to chill till like 11:30, 12. फिर I used to study all night 12 o'clock से लेके 6, 6:30, 7 o'clock. सुबह को सब लोग को मेरे फ्रेंड्स उठते थे, गुड मॉर्निंग आता था, मैं गुड नाइट बोलती थी. That was my schedule. But that helped me. I don't think so anybody knows this. But the major reason which she believed is कि उनको हमेशा रहना felt that if I am awake from 7 to 2, she felt that at that point of time there is a major chaotic. Friends भी होते हैं, फोन भी आते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं, उनके साथ भी बात करनी होगी, दादा दादी दूसरे भी. एक ही ऐसा टाइम है जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. एंड दैट वाज द मेजर रीजन दैट शी चोज द टाइम. सो विच मीन्स यू विल हैव टू चूज योर टाइम. आपको ये करना होगा कि आप कब लीस्ट डिस्टर्ब होने वाले हो, कब आपको मैक्सिमम टाइम मिलने वाला है अपने और अपनी पढ़ाई के साथ. आई थिंक दैट शुड बी द की. हाँ, एंड यू डिसाइड योर टाइमिंग एंड मेक श्योर दैट यू एक्चुअली इन्वेस्ट इट. अगर तुम 4 घंटा बुक के सामने बैठे हो, फोन भी साइड में, बट तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो ना, तो इट इज़ नॉट गोना हेल्प इट. यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ दैट यू आर पुटिंग इन द एफर्ट्स, यू आर पुटिंग इन द डेडिकेशन एंड टेकिंग वॉट इट, मतलब डूइंग वॉट इट टेक्स. That will only help you to succeed. And अगर तुमने ये सब किया ना, it is actually not difficult to succeed because it definitely helped me. I saw all my friends. All my friends were so. हाँ, they were so serious. They were so dedicated. I'm not saying don't take breaks. Even I took breaks. बीच में a break is necessary while studying. कभी-कभी एक दिन का भी break की ज़रूरत है. But you need to know कि पढ़ाई is not going in the balancing figure. That's all I'll say because that is what helps. Choose your hours and make sure that you actually study in them. And उसके बाद you yourself will gain the confidence to give the exam, crack it in one attempt, and move ahead in life. So let's take quick. Now we have seen what you've done in classes. We've seen what you've done in 3 months. अब आता है main घड़ी. ये रात अंतिम, ये रात भारी. How was your feeling? How was your feeling on the day of exam? One day before exam, every exam by exam, वो क्या feeling होती थी? Please express. तो I made this timetable for myself in the study leave period कि मेरे काउंट करके 3 रिविजन्स हुए थे बिकॉज लाइक स्मिथ सर, FM के सर, ही गाइडेड अस कि यू नो यू शुड, सिंस यू हैव इतना अमाउंट ऑफ टाइम, टेक 4 days per subject, then take 2 days per subject and then do 1 day per subject. तो दैट इंश्योर्ड के स्टडी लीव का पूरा पीरियड खत्म हो गया, 3 रिविजन्स अच्छे से हो गए एंड फिर उसके बाद वी हैड 1 week in spare एंड फिर एग्जाम्स आ रही थी. So that 1 week in spare just went by. I don't know what I did. I was revising, I was doing papers, I was just breezing through it in a way because mentally अभी डर लगने लगा था कि ठीक है स्टडी लीव खत्म हो गया, अभी एग्ज़ाम आएगी. एग्ज़ाम के एक दिन पहले, अकाउंट्स के पेपर के दिन के पहले, आई वॉज सुपर स्ट्रेस्ड एंड घर पे भी सब लोग, वो डर का माहौल आ जाता है कि लाइफ की सबसे फर्स्ट एकदम इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये. मतलब ठीक है फाउंडेशन हुआ, 10th हो गया, 12th हो गया, इट वेंट बाय. बोर्ड्स आर रिलेटिवली ईजियर. इधर गेम ही अलग है, इधर तुम्हारे कंसेप्ट टेस्ट होने वाले हैं, उधर तुम्हारी मेमोरी टेस्ट होती है. तो नाउ आई वाज पैनिकिंग कि विल आई रिमेंबर इट इन द एग्जाम, विल आई रिमेंबर इट, क्या होगा. एग्जाम का एक दिन पहले आई वाज स्टडिंग बट all of this was going on in the back of my mind. First day of the exam, I went to the Derasar. I prayed, obviously, normal, what we Indians do and we definitely should do.
उसके बाद आई रीच द एग्जाम सेंटर, एग्जाम हॉल में आई एम सिटिंग. सो 1:30 2 o'clock पेपर स्टार्ट्स, 1:30 को मैं उधर पहुंच गई थी. 15 minutes आई वाज सिटिंग विथ माय फ्रेंड, ही वाज इन द सेम सेंटर. वी बोथ वर जस्ट डिस्कसिंग कि बॉस इतना पढ़ा है, ये पेपर तो हम फोड़ के आएंगे. वी गेव ईच अदर कॉन्फिडेंस, ऑल द बेस्ट विश किया. वी वेंट टू द एग्जाम हॉल, एग्जाम पेपर देखा, इट वॉज टेरिफाइंग. अकाउंट्स का पेपर फॉर मे. सो एवरीवन हैज टोल्ड अस, ओह गॉड, सो एवरीवन टोल्ड अस के ये अटेम्प्ट अच्छा जाएगा, नया सिलेबस है, दे वांट मोर पीपल टू पास. तो हम लोग सब ये माइंडसेट से गए थे कि अकाउंट्स में क्या ही पूछ लेंगे. अकाउंट्स में दे सिक्सर मारा वो लोग ने बेसिकली. तो पेपर देख के हाफ ऑफ द पीपल वर टेरिफाइड, बट आई डिडंट नो दैट, राइट. आई न्यू माई कंटेंट. आई वाज लाइक ठीक है, पेपर आया है, देखते हैं क्या होगा. तो आई रोट द पेपर. मेरा पेपर लिखने के बाद आई वाज लाइक नए कंसेप्ट्स थे, बट आई थिंक आई हैव यूज्ड माय कॉमन सेंस एंड दैट शुड डू मी गुड. मेरा अच्छा गया. तो आई वाज लाइक ठीक है, अच्छा गया. आई वेंट आउट, आई एम सीइंग पीपल क्राइंग. दे वर लाइक हम फेल हो जाएंगे. इवन माई फ्रेंड, ही वाज लाइक मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को मैं ग्रुप ही नहीं देना चाहता हूँ, ये क्या पेपर था. एंड आई वाज लाइक इतना गंदा गया है. फिर मुझे टेंशन आ गया कि शिट मेरा क्यों अच्छा गया है, मतलब एम आई बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, एम आई बीइंग डिल्यूजनल. ऐसे फर्स्ट पेपर गया. सेकेंड पेपर आया. सेकेंड पेपर वॉज ओके, बहुत अनएक्सपेक्टेड पूछा था लॉ में, बट अच्छा था. इट वॉज एन ईजी पेपर इफ़ यू नो द कंटेंट थरली. तो सेकेंड पेपर में आई थॉट मेरा ओके गया है, बट व्हेन आई वेंट होम एंड चेक्ड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, अच्छा गया है, मैं खाली पैनिक कर रही हूँ. थर्ड पेपर टैक्स वॉज सुपर्ब, ऑनेस्टली मस्त पेपर आया था. एग्जैक्टली व्हाट सर हैड टॉट अस इन क्लास, बोथ द सर्स. टीटी से डरता है और मैडम का टैक्स का पेपर अच्छा गया. आई वॉज श्योर कि ये पेपर मेरा ग्रुप 1 में, मतलब आई गॉट द मैक्सिमम इन टैक्स इन माई रिजल्ट. आई गॉट 87 इन टैक्स. आई वॉज सुपर हैप्पी. दिस वॉज सुपर एक्सपेक्टेड इन टैक्स बिकॉज मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था. फिर पेपर 4 आया, कॉस्टिंग. आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट अगेन. आई न्यू एवरीथिंग. That was there obviously, but फिर it was a lengthy paper, तो बहुत सारे people couldn't even complete the paper. I know people were crying in that paper also, surprisingly. वही कि easy था but खत्म ही नहीं हुआ. तो that was a lengthy paper. Audit was again okay for me. फिर FMSM का paper again last exam वापस सिक्सर मारा. Technical paper, very difficult for people to crack unless you know the concepts. तो अगेन FMSM के पेपर के बाद लोग बाहर आए, यार ग्रुप 2 भी अभी तो फेल हो जाएगा, हम क्या करेंगे, कुछ क्या लिखा है पता नहीं. आई वाज लाइक गाइस रिलैक्स, जो हमें करना था वो हो गया. पैनिक फेज जो था सब कुछ फेस कर लिया, अभी खत्म हो गया ना, अभी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है. तो आई वाज जस्ट लाइक जस्ट रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू डिड, इवन इफ गंदा गया अभी यू कैन चेंज इट. सो जस्ट रिलैक्स, काम योरसेल्फ डाउन एंड प्रिपेयर योरसेल्फ. इफ यू आर श्योर कि मतलब बहुत गंदा गया है तो टेक अ ब्रेक, रिलैक्स योरसेल्फ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. बट अगर यू डोंट नो क्या हुआ है तो जस्ट छोड़ दो भगवान के भरोसे. वेकेशन आया है 1 साल के बाद, यू आर टेकिंग द ब्रेक. सो हम लोग के बैच को तो वी हैड 12th का बोर्ड्स, तुरंत फाउंडेशन दिया, फाउंडेशन के 3 दिन के बाद बैठ गए फॉर इंटर. तो दिस वॉज अ वेरी नेसेसरी ब्रेक. तो आई वॉज जस्ट लाइक गाइस चिल करो, मैं ट्रिप पे घूमने चली गई थी. इट वॉज नेसेसरी टू क्लियर माई ओन हेड. तो एग्जाम का टाइम तो ऐसे एक दिन लग रहा था कि यार कब खत्म होगा. बट फिर खत्म हो गया. उसके बाद वेकेशन तो ऐसे चला गया. बट द मेंटल स्टेट वाज डेफिनेटली So coming down to the next very important question, I want to now know. In fact, everybody would want to know. ये लोगों का पहला क्वेश्चन होता है, बट मेरा लास्ट क्वेश्चन है. Describe the day of result. कैसे? Oh God. So उसके एक दिन पहले, in fact, so we were expecting the results on the 5th of July. I know. There was a crazy wave going on Twitter कि 4th July को आएगा, 5th July को आएगा, 7th July को रिजल्ट आ जाएगा. तो everyone was in nerves 1st July से. That was when my OC का बैच had started. तो even there we had those discussions कि बस अभी रिजल्ट आएगा, एक वीक में आ जाएगा. Everyone was panicking, but कोई न्यूज़ नहीं from ICI की साइड. And the expectancy was because मतलब सितंबर के फॉर्म्स वर ओपनिंग, तो द नोशन इज के उसके पहले रिजल्ट आ जाता है. बट नो रिप्लाई फ्रॉम ICI के साइड, मतलब नो नोटिस सेंट आउट. फिर ऑन 5th July वी गॉट अ नोटिस के रिजल्ट आएगा 11th July को. तो वी आर लाइक अरे यार, इतना वो एंटिसिपेशन बिल्डअप हो गया था फॉर 7th July इन हेड. बट फिर उसके बाद वी आर लाइक ठीक है, थोड़े दिन और काम रहता है. 11th July 10th July को आई वाज सुपर पैनिक की, मतलब दैट इज वेयर द पैनिक किक्ड इन फॉर मी. OC खत्म हुआ, मेरा शाम का बैच था तो 8:30 को OC खत्म हुआ. आई वाज
fully panicky. But luckily वो दिन OC के friends के साथ we all went out because we all were afraid for the results. तो we all went out, we were having dinner, we chilled, we danced, nerves सभी shake off कर लिए. फिर घर पे गए. घर पे I couldn't sleep at night. I was super panicky. आपका तो पढ़ाई का टाइम हो गया ना 12 से 4. अरे वो तो स्केड्यूल ठीक है, वो तो फिक्स हो गया. पर उसके बाद आई वाज सुपर पैनिकी कि नहीं मतलब अभी रिजल्ट आ रहा है, क्या होगा अगर रैंक नहीं आई तो. बिकॉज आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई डेफिनेटली वांटेड दिस रैंक. आई हैड मैनिफेस्टेड इट, आई हैड डन एवरीथिंग दैट इट टुक. तो आई वाज सुपर पैनिकी. उसके बाद सुबह सब लोग बोला कि 7 बजे शायद आ सकता है. तो आई हैड एन अलार्म फॉर 7 o'clock. आई स्लेप्ट एट अराउंड 3 बिकॉज आई कुडंट स्लीप. 7 बजे का अलार्म लगाया, देखा रिजल्ट रिफ्रेश नहीं आया, वापस सो गई. 8 बजे का अलार्म था, वापस 8 बजे उठी, रिफ्रेश रिजल्ट नहीं आया. फिर 9 बजे वापस उठी, चेक किया नहीं आया. तो 9 बजे आई वाज लाइक उठ जाते अभी कभी भी आएगा. तो आई गॉट अप, आई गॉट ड्रेस्ड, आई गॉट शावर्ड, ब्रेकफास्ट खा लिया. फिर पैनिक किक्ड इन. 10 बजा. हम लोग को अमित सर ने बोला था 10 बजे आएगा रिजल्ट. तो बस चालू पैनिक. 10 बजे से रिफ्रेश, मेरा रिजल्ट लोड नहीं हो रहा है. ओके, इट इज़ नॉट गेटिंग लोडेड. एकदम लिटरली दैट वाज व्हाट. सो आई वाज सुपर पैनिकी. फिर एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि रहना रिजल्ट आ गया. अब लाइक नहीं लोड नहीं हो रहा है. तो लाइक मेरा लोड हो गया, तेरा डाल दो. अब लाइक नहीं मत डाल. नहीं, कट द फोन बिकॉज आई वाज लाइक आई कांट बिलीव इट. फिर अगर वैसे भी मुझे कोई बोलता तो आई वुडंट बिलीव इट. आई वाज सुपर पैनिकी. फिर उसके बाद फाइनली 5 ट्राई के बाद रिजल्ट लोड हुआ. तो आई सॉ माई मार्क्स 476. yes, let's go. And in my head I was like, see 75% के ऊपर आ गया ना तो रैंक आ जाएगी. तो I was like yes 450 up है, yes रैंक आ गई होगी, let's check. तो उसके बाद I went to check the merit list. Merit list में वापस 4 बार I had to try, नहीं लोड हो रहा है. So with every try, so first 2 times I tried एकदम कॉन्फिडेंटली. सेकेंड ट्राई के बाद मुझे वो थॉट आया कि बॉस रैंक नहीं आई है शायद, सो लेट्स गिव अप. तो मैंने एकदम सॉफ्टली बोला मम्मा रैंक नहीं आई होगी, जस्ट इट्स ओके, इट्स फाइन. तो शी इज लाइक नो वेट लेट अस चेक. और एक बार डाला और एक बार लोड नहीं हुआ. तो देन एकदम सॉफ्टली आई रिपीटेड माई रोल नंबर. तो मैं मम्मा इज लाइक इट्स ओके रिलैक्स. तो उसके बाद और एक बार ट्राई किया, नहीं आया. एम लाइक ठीक है छोड़ो. एंड आई वाज अबाउट टू गेट अप. तो अभी मम्मी ने वापस डाला एंड शी इज लाइक रहना 35. आई वाज लाइक ओह माय गॉड. 2 minutes was such a blur. मेरे डैड ने भी रिजल्ट देख लिया था. ही वॉज पीछे से ही वॉज एकदम साइलेंट बिकॉज ही न्यू जब तक मैं मेरी आंखों से नहीं देखोगी आई वोंट बिलीव इट. एंड उसके बाद द डे वॉज सो गुड. आई वेंट टू मीट ऑल माई प्रोफेसर्स एट एडनोवेट. फाउंडेशन के प्रोफेसर्स को मिलने गई, सभी दोस्तों को मिलने गई. ऑल ऑफ अस हैड पास्ड एंड इट वॉज सच अ मोमेंट ऑफ जॉय के you know we are all together in this. आगे भी. and inter में many people face this problem but we didn't. and we thanked each other कि you know you kept me motivated, you kept me you helped me solve my doubts and stuff. I remember that victorious moment we had. Oh yes, that moment was so good. Everyone lifted me up and we had the victory parade. I know. So guys, I think what a fantastic and what an inspirational journey Rena you had, and it always come down to it, you know, and I always want कि हम तब नहीं जीतते जब हम अचीव करते हैं, हम तब जीतते हैं जब हम अचीव करके लोगों को इंस्पायर करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मोमेंट है जहाँ पर आज एवरीबडी इज लुकिंग अप टू यू बिकॉज यू गॉट इट, यू डन इट. सो आई वुड वॉन्ट अ स्मॉल मैसेज इफ यू कैन पास ऑन in general to all your juniors who are watching this podcast today. See, one thing that I'd like to say is तुम जो भी प्रोफेसर के पास हो, you might not like them, but they are definitely more experienced than you. So one thing is कि you need to take advice from them. Other is every one of us has a role model. Listen to them. They will help you through it. मैंने भी बहुत back answer किया. Even I've been like, there have been phases in my life as well where in fact during inter ke I didn't listen to them. I was very adamant. I'm a very adamant person, so knows that. But they help. They want what is best for you, and professors will guide you because they have been through it and they have seen so many students go through it that they know what it is. They know कि स्टूडेंट किधर अटकेगा, उसको किधर पुश की ज़रूरत पड़ेगी, उसको किधर वापस हवा में उड़ रहा है तो नीचे लाना पड़ेगा, एवरीथिंग. तो डेफिनेटली ट्रस्ट देम, बी थरो एंड बी डेडिकेटेड. हैव दैट वन थिंग इन योर हेड कि यू नो आई एम रेडी टू डू वॉट इट्स गोना टेक. आई विल डू एवरीथिंग, आई विल पुट इन एवरीथिंग. एंड it is not a sacrifice, it's like a trade-off. Don't consider it as you know I'm sacrificing my life. It's a trade-off for my life कि आगे जाके
सीए करना है, सीए बन जाओगी, उसके बाद या बन जाऊंगा, जो करना है उसके बाद करूँगा और मज़े करूँगा. एंड डोंट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योर सेल्फ एज वेल. टेक ब्रेक्स, इट्स इंपॉर्टेंट, बट एज आई सेड, एज आई हैव बीन सेइंग, पढ़ाई बैलेंसिंग फिगर नहीं होनी चाहिए. चलो, सो लेट्स क्विक इट अप. वेरी नाइसली सेड. आई थिंक अब एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए. Rena, आई एम श्योर शी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट लेट्स टेक इट एंड लेट्स सी हाउ Rena is going to put it up to it. The first very question, your favorite subject? Costing. Oh, again not scripted. Costing and direct tax. Okay. So, And law. Okay, I love law as well. मतलब अभी वो सारे 6 सब्जेक्ट बोलने वाले, पहला नाम कॉस्टिंग का लिया है. Okay. उसके बाद फेवरेट प्रोफेसर? Dhaval sir. Wow. उसके बाद the next question goes, name that one person in your friends who had made sure that you are not going down. Sia and Vedant. Sia and Vedant, this goes to you. Okay. Tell me one thing. Theory subject or practical subject? Both. I'm a mix of both, but I think practical more. Okay, and I think she has already said the night person or morning person, so she is a night owl. Definitely. And now comes the next question. Tell me the one cheating which you think you should have not done. Probably not sticking to my timetable, but no, I don't think that's like a cheating, but that would have helped me to, you know, be on track. And I am a person who's very perfectionist, के मतलब timetable बना ना तो वैसे ही follow करना पड़ेगा. So that was one thing where I felt guilty, but ठीक, at the end of the day हो गया सब, so it's fine. Okay, the last very important question. Ednovate or Ednovate? Ednovate. Ednovate or Ednovate? Ednovate. Okay, guys. After this quick round of rapid fire, let us have a quick Thanksgiving round. So, Rena, I'm going to name the people and you have to just thank them in your own way. Okay? Mama. Thank you, Mama, for always inspiring me and to stay strong on my path despite everything that, you know, we have faced. Thank you for motivating me and pushing me and ensuring that I can. Dad. Thank you, Papa, for teaching me that even if you are facing the worst times of your life, you still can stay strong and you can push through it no matter what, and always be your own person and be bold and just say the right thing. And when you know you're right, don't give it up for anything. Grandparents. My daddy has been my role model since always. So thank you, Daddy, for helping me push through CA. And thank you, Dada, for always believing in me and always saying that, you know, Tara thi to thayat jaise. And I remember your aunt and all have also helped you. Yes, so my bua, my masi, even my fua and my masa, all of them have always guided me at the right places. They have helped me push through it. And whenever I needed to talk or rant, especially relating to CA, I couldn't do it to my parents, but I could definitely do it to my masi and masa, and they would always be like, "ठीक है, अभी हमें पर आज करूँ चे, but we got a rank, right? So even you're gonna get it. So work hard and you got." That bunch of idiots friends you had time with. So they were the people who made my inter CA so much fun for me, and they were with me in my classes, but other than my classes as well, my best friends Mehak, Nandita, they helped me through this, and Khush, he helped me through the entire process completely. So I would especially like to thank them, and they always inspired me to not give up, and we were on our own tracks, but they always helped me out in my. Ednovate. Thank you so much, Ednovate, for मेरा जो ये belief था कि मुझे rank आएगा, for making me achieve it in real time, and for always guiding me throughout, and for having the best professors who could teach the subject and who could also teach a person to live life in a better. Wow, I'm just going a little off-board. Amit sir. Amit sir is superb. मतलब उन्होंने DT से प्यार कैसे करवाया? I didn't used to like him. He knows that. But फिर उसके बाद he was just amazing. He helped me throughout. He guided me. DT के सभी doubts clear कराए. इतना हंसाया, इतने jokes मारे. I would also want to mention Ednovate support staff. Ednovate support staff, so they helped all the professors, they helped all the students. कभी भी lecture miss हो गया तो thank you so much, मतलब notes arrange करवा दो जल्दी से, and you know recording जल्दी भेज दो please, and वो लोग करके देते थे, तो thank you for that. And thanks to the final almighty. Oh, he helped me, he pushed me to
stay on. I was praying and I was like, okay, God, please, I've given it my all. And definitely a luck factor was there, because there are so many people who deserved a rank, they didn't get it. So many people who deserved to pass, they failed. So definitely God was with me in this. Wow. So thank you for that luck factor. But luck and determination. So Rena, I have again proved a very, very, very strong message. ऐसा कहते हैं कि एक कैच ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक ओवर ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक सेंचुरी ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया. ये पूरी टीम थी जिन्होंने मिलकर वर्ल्ड कप जिताया. और वैसे ही रहना, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद वंडरफुल पेरेंट्स, विद वंडरफुल फैमिली, विद दिस बेस्ट क्लास इन टाउन, विद बेस्ट सेट ऑफ फ्रेंड, एंड दिस वाज नॉट only your achievement. She's given a credit to everyone, and it was a big day. I think she's very humble. All credit goes to Rena. A huge round of applause from the entire team for Rena. Congratulations. Thank you so much, sir. And I'm so sure that we are going to make it even bigger in final series. See you, sir. Thank you so much, guys, for joining us.